Good morning, everyone. It's time to go through this editorial today, and today's editorial is very important because it is related to foreign policy as well as it is an international issue to discuss on. At the same time, we shall talk about SCO, and this is the central theme, you can say, of this very topic. SCO, you must have heard the name, but before we come to this word SCO, let me make you understand about the situation or the condition or the context that we are going to discuss in this very editorial. Actually, there is an organization called SCO, Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization, as it has been mentioned over here, you can check it out. And recently, the member countries had meeting on Tuesday, and it was hosted by Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. Fine. So it was first. The question is when it started. It has started on Tuesday, and it was hosted by Narendra Modi for the year 2023. More knowledge or information if you want to have about SEO, then you will have to wait a while. I'm just making you understand each and everything. If you are asked, ACO yani Shanghai Cooperation Organization was formed in the year, then answer will be 2001. By which country? Initially by China. Fine. Who are the members and what are the countries participants in this very SCO organization? And when we talk about their names, they are China as the founder member. Then after you can talk about another country, India. Then Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Russia, the important one. And in this very organization, Pakistan is also there. Let me make you understand that India and Pakistan, rather I should tell, India and Pakistan became member of this very organization SCO in 2017. You will have to remember this. Now let me revise it. This SCO Shanghai Cooperation Organization was formed in the year 2001 by China, and there are many countries. They are countries from Eurasia. Some countries are from Europe and Asia as well. That's why this is Eurasian organization, you can say. It was formed in 2001 by China. Now India and Pakistan became the permanent member of this very organization in 2017, and now it's time to go through this editorial. We shall be flexible in understanding both the languages Hindi and English. The first word you can say diminishing returns. Diminishing stands for कमी, कमना, घटना यानी डिक्रीजिंग यू कैन से. रिटर्न्स, रिटर्न मीन्स वापसी ऐसे होता है, बट इन वेन वी टॉक अबाउट रिटर्न्स इट मीन्स लाभ, दैट मीन्स प्रॉफिट. नाउ यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज. डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टैंड्स फॉर घटता हुआ लाभ, कमता हुआ लाभ. यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट something more and you get less, that is called diminishing returns. Or proportionately less returns and less profit is called diminishing returns. तो ये क्लियर है कि diminishing returns घटता हुआ लाभ. ऑन इंडिया एंड इट्स संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट. इस एडिटोरियल में बात होगी इंडिया का किसके साथ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के साथ जो इंगेजमेंट है उसके बारे में. इंडिया बेनिफिटेड एज अ मेंबर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. भारत लाभ उठाया है SCO के मेंबर होने के नाते. बट द फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट. लेकिन इसका जो भविष्य है वो ब्राइट नहीं है. इट इज़ नॉट वेरी मच अप टू मार्क.
The Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of a State meeting hosted by Prime Minister Narendra Modi on Tuesday. As I have already told you that the Shanghai Cooperation Organization Council Heads of meeting was organized on Tuesday and it was hosted by Prime Minister of India Narendra Modi on Tuesday. You must remember this date. Mark the first time India chaired the summit of regional countries. यह दर्शाता है कि भारत पहली बार इस तरह के जो रीजनल क्षेत्रीय कंट्रियों का कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भारत चेयर किया है यानी उसको होस्टिंग किया. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया चेयर्ड दिस काइंड ऑफ रीजनल कंट्रीज. इंडिया बिकेम अ फुल SCO member in 2017. as I have already told you that India became the full SCO member in 2017 along with Pakistan. दोनों देश एक साथ आए थे. The government has held a joining the originally Eurasian group was important as member countries make up a third of the global GDP. The government has held the joining the originally Eurasian group was important. जो सरकार ने ये फैसला लिया कि ये यूरेशियन ग्रुप यानी जिसमें एशिया यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं शामिल हैं उनमें शामिल होना एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर हैं अगर कुल मिलाकर के बात करें तो थर्ड ऑफ द ग्लोबल GDP यानी पूरे वैश्विक GDP का थर्ड पार्ट है. इस सब कंट्रीज़ को मिला दें तो इंडिया, कजाकिस्तान, ईरान वगैरह जितने भी हैं सबको मिलाएंगे तो थर्ड है. फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार का पाँचवा है, 1/5 है. अब फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स और ये पाँचवा नंबर है कितना जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें. अबाउट 44% ऑफ नेचुरल गैस इन लोगों के पास है. यानी ये सारे देशों को मिला करके जो SCO कंट्रीज़ हैं उसको मिला करके ये है कि अगर GDP के मामले में तीसरा, ग्लोबल ट्रेड के मामले में पाँचवा, ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स के मामले में पाँचवा और 44% इसके पास नेचुरल गैस. अब आइए, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ द फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी. और इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्षेत्रीय सिक्योरिटी है, सुरक्षा है और कनेक्टिविटी है. कनेक्टिविटी का मतलब होता है आपस में संचार के साधन डेवलप करने की बात है. तो जो एरियाज़ की टू इंडियाज़ ग्रोथ एंड मेकिंग अप इट्स चैलेंजेस, ये जो कुछ एरियाज हैं रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये जो कुछ क्षेत्र हैं जो भारत के लिए के विकास के लिए तथा उसके जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. यानी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी जो बातचीत में जो पार्ट है कि भारत का जो विकास और उसके साथ साथ जो चैलेंजेज है उसके सामने सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को लेकर के वो है. जैसा कि सच है टेररिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, द चाइनीज़ अग्रेशन का मतलब जो हमला होता है उसका चाइना का हमारे तरफ, एज वेल एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंतर्गत अलग अलग देशों में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है. तो ये है बीइंग इनसाइड द टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली एज पाकिस्तान इज़ अ मेंबर. यहाँ पे कहना चाह रहा है बीइंग इनसाइड द टेंट का मतलब होता है सुरक्षित रहना. यानी जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना हो तो ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित यानी टेंट के अंदर रहें, वही ज़्यादा अच्छा हो. ज़्यादा खुल करके बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा है. जब आपका नेबर, आपका जो इसमें मेंबर पाकिस्तान हो तो ऐसे में इनसाइड द टेंट रहना ही अच्छा है. इवन इफ दैट मीन्स कंडक्टिंग ज्वाइंट एक्सरसाइजेज अंडर SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. इवन इफ यहाँ तक कि अगर कोई कहता है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज कीजिए SCO के तहत जो क्षेत्रीय एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है. द SCO ऑल्सो गिव्स इंडिया एन इंटरफेस. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. यानी भारत कहना ये चाह रहा है कि जब आपका पड़ोसी आसपास में जो एग्रेसिव हो जैसे कि चाइना, जो टेररिस्ट को पाले हुए है जैसा कि पाकिस्तान, और ऐसे में भारत जैसे देश को क्या रहना चाहिए, इनसाइड द टेंट रहना चाहिए, ज़्यादा इसमें आगे नहीं आना चाहिए. यहाँ तक कि ये लोग कहें कि भाई हम लोग एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे, इसके बावजूद भी विश्वास नहीं करना चाहिए.
The ACO also gives India an interface with Central Asian market and resources. देखिए भारत को क्या फ़ायदा है, तो ACO की वजह से एक इसको रास्ता, इंटरफेस का मतलब रास्ता मिलता है कि सेंट्रल एशियन मार्केट में जा कर के अपने और उस रिसोर्सेज तक अपने पहुंच बनाने का, ठीक है, एक रास्ता देता है कि आप सेंट्रल एशिया के मार्केट्स और रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच बनाएं. फाइनली ज्वाइनिंग द ACO वाज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज स्टेटेड एम्बिशंस. फाइनली अगर देखा जाए तो भारत का ACO में ज्वाइन करना उसका एक की पार्ट है, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इंडियाज स्टेटेड एम्बिशन, भारत का जो निहित स्वार्थ है. क्या स्वार्थ है? मल्टी अलाइनमेंट. मतलब मल्टी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं. स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहने का मतलब होता है सामरिक स्वायत्तता. अब ये तो हिंदी हो गई, इंग्लिश में समझिए. स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि इट इज़ अ कंडीशन वेयर यू हैव योर ओन से. मीन्स वैसी स्थिति जहाँ पे आप अपने मन से कोई फैसला लेते हैं, आप किसी के प्रेशर में आकर के फैसला नहीं लेते हैं. तो भारत की स्थिति ऐसी है कि अब भारत खुद फैसला ले सकता है. ये ऑटोनॉमी कहलाता है, स्वायत्तता कहलाती है. व्हेन यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन फॉर योर वेल बीइंग और वेलफेयर. जब आप स्वतंत्र है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ये ऑटोनॉमी कहलाता है. और ये स्वायत्तता की वजह से ही हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के अपना मत स्ट्रांगली रख पाते हैं. तो भारत को इसमें कहा जा रहा है कि भारत का इस ACO में ज्वाइन करना ये था कि इसका इसमें निहित स्वार्थ था कि बहुत सारे देशों के साथ अलाइनमेंट होगा, साथ ही इसकी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, सामरिक स्वायत्तता है, वाइल बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर इन द वर्ल्ड, कि विश्व में जो भी हो उसमें बैलेंसिंग पावर का काम करे, बैलेंस करके रखे. And it seemed to no coincidence that Modi government joined the revived Quad and US and the US, Japan, Australia in the same year. ये कहा गया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भारत ACO को भी ज्वाइन किया और क्वाड में 4 देश हैं, जैसा इसका नाम है, क्वाड का मतलब 4 होता ही है. कौन कौन? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे भारत भी इसमें जुड़ गया है. तो ये जो रिवाइव्ड क्वाड है, ठीक है, तो दोनों का मेंबरशिप एक ही साथ ले लिया, परमानेंट मेंबरशिप. ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल, दिस हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक नेसेसिटी एज इंडिया हैज़ चूजन टू न्यूट्रल ऑन द यूक्रेन वार. क्योंकि पिछले साल ये जो था ये ज़रूरी था, क्योंकि भारत न्यूट्रल रह गया. किस मामले में? यूक्रेन के मामले में. बेनिफिट फ्रॉम फ्यूल एंड फर्टिलाइजर परचेज फ्रॉम रसिया. और फर्टिलाइज़र और फ्यूल का जो ये बेनिफिट मिला इसको खरीदने का रूस के साथ. यानी भारत जो है संगठन में शामिल होकर के भारत के लिए फ़ायदेमंद हो गया. Therefore, it was expected that India's turns to chair the ACO this year would be a major event. इसलिए कहा जा रहा था, ऐसा आशा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर भारत इस साल ACO को होस्ट करता है यानी चेयर करता है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, ऐसा लगता था लोगों को, माना जा रहा था. लेकिन राइवलिंग द एक्सपेक्टेड पॉम्प अराउंड द G20 मीट इन सितंबर. लेकिन जो प्रतिद्वंदिता होगी वो होगी कब? जब G20 की मीटिंग होगी सितंबर में, तब. ऐसा जैसा था अनुमान वैसा हुआ नहीं. यानी ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन किस पे अब टिका हुआ है? G20 की जो मीटिंग होने वाली है सितंबर पे, यानी उसमें ज़्यादा राइवलरी देखने को मिलेगी. इन एडिशन, साथ ही, गिवन रसियाज एंड चाइनाज ब्लॉक्स ऑन द G20 ज्वाइंट कम्युनिके दैट इंडिया इज कीन टू फाइंड कंसेंसस ऑन. इस बात का भी ख्याल रखना. गिवन का मतलब कंसिडरिंग, ये बात कंसिडर करते हुए कि रूस और चाइना जो है वो G20 के जो ज्वाइंट कम्युनिके है, कम्युनिके का मतलब होता है जब आप बातचीत करते हैं, अग्रीमेंट होता है, तो जो ज्वाइंट एग्रीमेंट है या फिर जो बातचीत निकल करके आती है उस पर रोक लगा दिया है, जिसके ऊपर भारत चाहता है, कीन का मतलब उत्सुक है, कि इसमें कंसेंसस का मतलब सहमति,
सहमति बनाई जाए। यानी रूस और चाइना का जो ज्वाइंट कम्युनिके है उस पर जो रोक लगा दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है और G20 में, तो इसके लिए भारत प्रयासरत है और उत्सुक है कि इस पे सहमति बने। द ACO समिट वुड हैव बीन अ कन्वेनियंट वेन्यू, और ये बात रखने के लिए भारत के लिए ACO की जो मीटिंग हुई वो कन्वेनियंट जगह थी, यानी सही जगह थी, फॉर मोदी टू निगोशिएट द रिजोल्यूशन विथ हिज काउंटर पार्ट्स, क्योंकि उसमें रूस भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, तो भारत के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था ये कि इस बात को उठा करके इसको निगोशिएट करता। However, India's decision to postpone the ACO summit due to the Prime Minister's US state visit and then to turn into a virtual summit may have been a damper on the ACO outcomes. अब देखिए, भारत ACO का इम्पोर्टेंट था कि ऐसा माना जा रहा था कि ACO को धूमधाम से ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत के द्वारा, क्योंकि भारत होस्टिंग कर रहा था। लेकिन ये सब G20 मीटिंग पे ऐसा है कि उस पर देखने को मिलेगा। ये जो धूम धड़ाम, जो भी पॉम्प का मतलब होता है धूम धड़ाम, ध्यान रखिएगा, ये जो धूम धड़ाम है वो कब देखने को मिलेगा? G20 की जो मीटिंग होगी सितंबर में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रूस और चाइना जो ब्लॉक कर दिए थे G20 के ज्वाइंट कम्युनिके पर, जो ज्वाइंट जो बातचीत होती है, सामने आकर के बातें करना, ज्वाइंट मीटिंग भी कर सकते हो, ज्वाइंट, तो इसके लिए भारत चाहता है कि, उत्सुक था कि इस पे सहमति बने कि ज्वाइंट कम्युनिके हो, ठीक है। और ऐसा था कि ACO बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां मोदी ऐसे मुद्दे को उठा सकते थे, इस मुद्दे को उठा सकते थे, क्योंकि जितने भी इसमें देश हैं, जो जैसे चाइना और रूस इसमें शामिल हैं, तो ऐसा कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो ये जो ACO की मीटिंग थी इसको पोस्टपोन करना पड़ा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री US के स्टेट विजिट पे गए हुए थे। ऐसे में वापस आकर के तुरंत तैयारी करना, तो ये जो है ऐसा लग रहा था कि डैम्पनर का मतलब होता है उस चीज़ में कमी आ जाना, यानी खराब स्थिति में चला जाना। तो ACO का जो जो जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये धूम धड़ाम से होगा, वैसा हुआ नहीं, और इसका आउटकम हो डैम्पनिंग हो गया, यानी इसको नीचे ले जाने वाला आउटकम्स, मतलब परिणाम सामने आए। इंडियाज कंसर्न्स विथ होस्टिंग जिनपिंग गिवन द LAC हॉस्टिलिटीज, भारत की जो चिंता है वो सी जिनपिंग से रिलेटेड है, और वो LAC पे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो दुश्मनी, हॉस्टिलिटीज़ मतलब दुश्मनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको लेकर के है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ पॉसिबल ग्रैंड स्टैंडिंग, मतलब होता है आडंबर, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ का जो ऐसा अनुमानित आडंबर था, और इवन द ऑप्टिक्स ऑफ वेलकमिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन में हैव बीन फैक्टर्स। अब देखिए ACO डैम्पनिंग क्यों हो रहा है? तो डैम्पनिंग की वजह है वो ये है, नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है, हॉस्टिलिटीज़ है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो आडंबर है, गाउडी नेचर है, यानी दिखावा करने वाला नेचर है, और एक उद्देश्य कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हम यहाँ पे वेलकम करेंगे, तो ये सब मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा इसमें ये है। वट एवर द रीजन, जो भी रीजन रहा हो, while the members hammered out a New Delhi declaration and joined a statement on radicalization, यानी हालांकि जो भी रहा हो, लेकिन जो मेंबर्स इसमें शामिल हुए उन्होंने हैमर्ड आउट का मतलब होता है सहमति बनाना, तो सहमति बनाए हैं किस बात को लेकर के? जो न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन हुआ और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेडिकलाइजेशन जो है, कट्टरवाद, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू फोर्स कंसेशन ऑन अदर एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग द वन ऑन मेकिंग इंग्लिश अ फॉर्मर ACO लैंग्वेज। तो कुछ एग्रीमेंट हुए रेडिकलाइजेशन को लेकर के, दिक्कत हो रही बोलने में भाई, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लोग लेकर के। तो रेडिकल का मतलब ही होता है कट्टर, और रेडिकलाइजेशन का मतलब हो गया कट्टरवाद, और कट्टरवाद को लेकर के जो सहमति बनी है उसमें कुछ हुआ, फिर गवर्नमेंट लेकिन फेल हो गई कि इस बात पे सहमति बनाने में। फोर्स का मतलब हो तो मेक,
और कंसेंसस का मतलब सहमति बनाने में, कि जो भी और भी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को एससीओ लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। वाइल इंडिया डिस्पाइट बीइंग चेयर डिड नॉट एंडोर्स अ रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन, भारत इसको चेयर करने के बावजूद, होस्टिंग करने के बावजूद भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिखाया इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर के। प्रेजम्बली शायद ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर चाइनाज इन प्रिंट, शायद वो चाइना के मामले को लेकर के ऐसा नहीं उठाया। With its SEO membership ending, the government may now be filling the law of diminishing returns over the SEO engagement। यानी जैसे इसका चेयरपर्सनशिप, यानी भारत का जो इस बार चेयरपर्सनशिप था वो ख़त्म हो गया, उसके साथ ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जैसा ये भारत इसको देख रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे घटता हुआ लाभ की ओर इशारा करता है। One that might make its task of hosting the G20 even more difficult, जिसके वजह से G20 को ऑर्गेनाइज करना भारत के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इसमें कुछ नहीं कर पाया एससीओ में, इसका असर G20 पे भी हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।